کا خطاب، کہا بھارت خواتین کو بااختیار بنانے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ادھمپور میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پروبیشنرز اور پولیس انسپکٹروں کی ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کی شرکت۔ کہا سب انسپکٹر اسامیوں کی حالیہ مشتر ہوئی فہرست سے متعلق خدشات کو دور کرنے کے لیے کی جائے گی تحقیقات۔ صدر جمہوریہ کے چناؤ کا اعلان، ووٹنگ 18 جولائی کو، ووٹوں کی گنتی 21 جولائی کو۔ اور وزیراعظم نریندر مودی کے مطابق بھارت کی بایو اکانومی میں گزشتہ 8 برسوں کے دوران 8 گنا اضافہ۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج جموں میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے 5ویں کنوکیشن سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ جموں کشمیر میں اعلیٰ تعلیم کا ایک نیا دور پروان چڑھ رہا ہے اور یہاں کا تعلیمی ماحول دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے طلباء سے تلقین کی کہ وہ قوم کو مضبوطی سے ترقی یافتہ بنانے میں اپنا مثبت رول ادا کرے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ نوجوان قوم کا مستقبل ہیں۔ انہوں نے طالبات کو 3 سونے کے تمغے حاصل کرنے پر انہیں مبارکباد پیش کی اور کہا کہ بھارت خواتین کو بااختیار بنانے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس سال 214 طالب علموں کو MBA کی ڈگریاں حاصل ہو رہی ہیں۔ آج کے کنوکیشن کی خاص بات یہ ہے کہ 77 طالبات کو ڈگریوں سے نوازا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نے IIM جموں میں ڈائیورسٹی سیل کا افتتاح کیا۔ صدر جمہوریہ کا کل شری ماتا ویشنو دیوی جی کے استاپن پر حاضری دینے کا پروگرام ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج شیر کشمیر پولیس اکیڈمی ادھمپور میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پروبیشنرز اور پولیس انسپکٹروں کی ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ بہادر آفیسر جموں کشمیر پولیس کا عزت و وقار بلند رکھنے کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے اپنی بہترین خدمات باہم رکھیں گے۔ انہوں نے جموں کشمیر پولیس کو دہشت گرد مخالف کارروائیاں، امن و قانون بنائے رکھنے، ڈرون سے بڑھتے ہوئے خطرات، منشیات کے کاروبار، سائبر کرائم اور جموں کشمیر میں آئے روز امن و قانون بنائے رکھنا جیسے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے آفیسروں اور جوانوں کو زبردست خراج عقیدت ادا کیا جنہوں نے فرائض کی انجام دہی کے دوران قربانیاں پیش کی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ کی طرف سے حال ہی میں شائع پولیس سب انسپکٹر اسامیوں کی فہرست میں عوامی خدشات کے پیش نظر سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ہوم سیکرٹری کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو ان الزامات کی تحقیقات کرے گی۔ LG نے کہا کہ آج تک جو بھی تقرریاں ہوئی ہیں وہ ایک صاف و شفاف طریقے کے ذریعے عمل میں لائی گئی، تاہم آج سب انسپکٹر اسامیوں کی بھرتی کے حوالے سے عوام کی طرف سے خدشات ظاہر کی جا رہی ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ کمیٹی جتنا جلد ممکن ہو اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور اگر اس میں کوئی شخص ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور بھرتی کے حوالے سے تمام عمل کو نئے اور صاف و شفاف طریقے سے عمل میں لایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ٹریننگ کے دوران غیر معمولی کارکردگی دکھانے والوں میں ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے نئے پروبیشنروں کو پولیس خاندان میں شامل ہونے پر خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ سری نگر میں آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں منعقدہ انتظامی کونسل میٹنگ میں اسٹیشنری اینڈ آفس سپلائز محکمے کو بند کرنے کی تجویز کو منظوری دی گئی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر RR بھٹناگر، چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور لیفٹیننٹ گورنر کی پرنسپل سیکرٹری نتیشور کمار بھی موجود تھے۔ یہ
फैसला इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए लिया गया कि जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के तहत तमाम सरकारी और नीम सरकारी महकमों में दरकार सामान की खरीदारी GEM पोर्टल के जरिए करना जरूरी है। इसलिए तमाम महकमे GEM पोर्टल के जरिए ही सामान खरीद रहे हैं, जिसके नतीजे में महकमा स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज का कामकाज गैर मौसर बन गया है। इंतजामी काउंसिल ने महकमे को बंद करने के फैसले के साथ साथ इसके बुनियादी ढांचे और अमले को दीगर महकमों में मुंतकिल करने को भी मंजूरी दी। चुनाव कमीशन ने आज भारत के 16वें सदर जमहूरिया के चुनाव का बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। नई दिल्ली में चुनाव शेड्यूल जारी करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि ये चुनाव 18 जुलाई को होंगे, जिसके लिए 15 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा और कागजात नामजदगी 29 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। कागजों की जांच पड़ताल 30 जून को होगी, जबकि वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल सदर के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और रियासती कानून साज असेंबलियों के इहातों में होगी। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव अफसरान को हिदायत दी कि वो चुनाव अमल को माहौल दोस्त बनाने के लिए प्लास्टिक से बने मवाद के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। याद रहे, मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दत 24 जुलाई को खत्म हो रही है। जम्मू में आज एक मीटिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भूपिंदर कुमार ने गाड़ियों के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि कमिश्नर मौसूफ की हिदायत के ऐन मुताबिक HSRP के बगैर गाड़ियों का चालान करने का अमल जारी है और अब बड़ी तादाद में गाड़ी मालकान HSRP लगाने के लिए हुकाम से रुजू कर रहे हैं। ताहम अभी भी बहुत सारी गाड़ियां HSRP के बगैर सड़कों पर रवां दवा हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अवामी नोटिसों के जरिए ये प्लेट लगाने की तलकीन की गई। मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट ने 6 जून को इस हवाले से एक नोटिस जारी की, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि 15 जून से HSRP के बगैर तमाम गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी गाड़ी के मालकान पर आयद होगी। मीटिंग में कमिश्नर मौसूफ ने महकमे के अफसरान से कहा कि वो आम लोगों में मज़कूरा प्लेट अपनी गाड़ियों में लगाने से मुतल्लिक जानकारी भी फराहम करें। जम्मू कश्मीर यूटी भर के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में आज हाल ही में गोपालपोरा कोलगाम के हाई स्कूल में मिलिटेंटों के हाथों कत्ल की गई मुदरसा रजनी बाला की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बच्चों ने सुबह मॉर्निंग असेंबली पर उनका 10वां मनाने के मौके पर खराज अकीदत अदा करने की गरज से 2 मिनट की खामोशी की। इससे पहले महकमा तालीम ने कल इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया था। याद रहे, रजनी बाला, जिनका ताल्लुक सांबा जिले से था, गोपालपोरा कोलगाम के हाई स्कूल में बतौर टीचर तैनात थी, जहां 31 मई को मिलिटेंटों ने उन्हें हलाक किया। हमारे कोलगाम नुमाइंदे ने स्कूल के जेर तालीम बच्चों से बात की, जिन्होंने अपनी हरदिल अजीज टीचर को पुरनम आंखों से याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पहले हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने यहाँ पे रजनी बाला गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा नाम रखा है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का। इस वजह से हमारे दिलों में रजनी मैम हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। जब भी हम यहाँ इस बोर्ड को देखेंगे तो हम यही महसूस करेंगे कि रजनी मैम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जब भी रजनी मैम हमारी क्लास में आती थी, वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी। पहले आती थी, कहती थी बुक निकालिए और हम पढ़ना शुरू करते हैं, और अगर किसी बच्चे की कोई मिस्टेक होती थी, वो कहती थी आज नहीं तो कल हो जाएगा, आप घर पे प्रैक्टिस भी कीजिएगा, कोई बात नहीं। वो कभी भी नहीं मारती थी। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता था। क्लासेस में भी टीचर्स के साथ भी वो बहुत अच्छा भी पढ़ाती थी और कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी। हमेशा कहती थी आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गोपालपोरा हाई स्कूल को रजनी बाला के नाम से मंसूब करने का फैसला किया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल सांबा का दौरा करके सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया।
डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज शादीपुरा संभल के यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रिहायशी और दीगर सहूलियात से मुतल्लिक जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि जरूरी सहूलियात से मुतल्लिक कामों का बेशतर हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, जबकि दीगर कामों पर काम शद्दोमद से जारी है। डीसी ने मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि ट्रांजिट कैंप पर तिब्बी सहूलियात के अलावा सफाई सुथराई के लिए खास इंतजाम किए जाएं। वादी में सूफी और ऋषियों की तालीमात को उजागर करने की गरज से महकमा सियाहत ने आज SKICC श्रीनगर में 3 रोजा सूफी फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी, महकमा सियाहत के सेक्रेटरी सरमद हफीज, KVIC की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट, नाजमी सियाहत कश्मीर डॉक्टर GN यत्तो और दीगर कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। 3 रोजा फेस्टिवल के दौरान चश्माशाही, पहलगाम और SKICC श्रीनगर में सूफी संतों और ऋषियों की तालीमात को उजागर करने के लिए प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब पर आज मुकर्ररीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर सकाफती खजाने से मालामाल है और यहाँ की विरासत की अहमियत को समझने की काफी जरूरत है। उन्होंने सूफी संतों की तालीमात को आलमी सतह पर उजागर करने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस मौके पर नामवर ब्रॉडकास्टर और अदीब डॉक्टर सतीश विमल ने कलीदी खुतबा पेश किया। प्रोग्राम के आखिर पर सूफीज्म पर एक मौसीकी का प्रोग्राम भी मुनक्कद किया गया। ज़राअत के मरकजी वजीर ममलकत कैलाश चौधरी, जो वादी के दौरे पर हैं, ने आज सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट्स और DC ऑफिस कम्प्लेक्स पुलवामा में मेवा उगाने वालों की एसोसिएशन, तरक्की पसंद बाग मालकान और दीगर किसानों से बातचीत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीर उल हक चौधरी और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल के अलावा दीगर कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की बायो इकोनॉमी में गुज़श्ता 8 बरसों में 8 गुना इजाफा हुआ है और ये $10 अरब से बढ़कर $80 अरब हो गई है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में चोटी के 10 मुल्कों की लीग में शामिल होने के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि 8 बरसों में मुल्क में स्टार्टअप्स की तादाद 60 मुख्तलिफ सनतों में 70,000 हो गई है, जिनमें से 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बायोटेक शोबे से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि आज जब भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, बायोटेक शोबा अगले 25 वर्षों के लिए तरक्याती इक़दामात लाने में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत स्टार्टअप्स की अगली सतह के लिए काम कर रही है। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 194 करोड़ 59 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल ही 15,43,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 7,200 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 3,500 मरीज सेहतयाब भी हुए और इसी अरसे में 8 अफराद की मौत भी हुई है। सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,26,40,301 हो गई है। मुल्क में सरदस्त सेहतयाबी की शरह 98.71% है। जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से अहम माली इस्लाहात राइज करने की बदौलत यूनियन टेरिटरी के माल निजाम में नुमाया तब्दीली आई है, जिसकी बदौलत खित्ते के तरक्याती मंजरनामे में रोशन इम्कानात की राहें खुल गई हैं। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान के मुताबिक बजट एस्टिमेशन एंड एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम बेनज़ इस्लाहात की बदौलत जम्मू कश्मीर के अवाम अपने अपने इलाकों में हो रही कामों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ईरान के वजीर खारजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ एक रस्मी मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आजम ने भारत और ईरान के दरमियान तवील अरसे से जारी तहजीबी और सकाफती रिश्तों का जिक्र किया। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्कों को कोविड के बाद अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की ओर काम करना चाहिए। उन्होंने दौरे पर आए वजीर से कहा कि वो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के साथ मुलाकात करने के मुंतजर हैं।
मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 43.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 27.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।